اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے آمین۔ تو بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں، جب شام ہو جائے یا کچھ رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو۔ تو اس کے متعلق تھوڑا سا ہم انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور دھیان سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا کرنا رہتا ہے روم میں داخل ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، ہمارے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں، سوالات کے جواب دیتے ہیں الحمدللہ۔ آج بھی ایک حدیث کی دلیل نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے تلاش کر کے دیا ہے۔ تو آئیے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ روم میں جب داخل ہوتے ہیں ہم لوگ تو کیا پڑھنا ہے اور کس طرح داخل ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ حدیث سن لیں گے انشاءاللہ۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فليذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء۔ یہ رواہ مسلم کی صحیح بہترین حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے 5262۔ اس کا ترجمہ ہم لوگ سنیں گے کہ جب اللہ کا بندہ جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جب اللہ کا ذکر کر کے داخل ہونا ہے دعا پڑھ کر، اور اس کے بعد میں جب کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے، ڈائریکٹ ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ آج نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ ہے، یعنی آج نہ رہنے کو ملا اور نہ کھانے کو ملا۔ کیوں؟ جب ہم انٹری کرتے ہیں روم میں تو اللہ کا نام لے کر انٹری کرتے ہیں، تب یہ شیطان کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے نہ رہنے کی جگہ اور نہ کھانے کی۔ اس کے بعد میں یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ اللہ کا نام لے کے انٹری کیا آدمی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آدمی بغیر ذکر کیے انٹری کر جاتا ہے، یعنی بغیر دعا پڑھے انٹری کر جاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، یعنی مجھے گھر مل گیا، رہنے کے لیے گھر مل گیا۔ اس کے بعد میں جب کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو اگر بغیر بسم اللہ کا کھاتا ہے، بغیر اللہ کے نام لیے کھاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ گھر بھی مل گیا اور کھانے کی جگہ بھی مل گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5262 میں۔ تو یہ بہترین حدیث ہے بھائیو، یعنی ہمارے بات جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن حدیث صحیح اور قرآن کی بات اور اللہ کا وعدہ جتنا ہے بالکل کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم پرہیزگار رہیں۔ تو اب انٹری کرتے وقت کیا پڑھیں گے ہم؟ بھئی جب دعا یاد ہوگا تو پڑھیں گے، اب دعا نہیں یاد ہوگا تو شیطان کو انٹری لے کے
साथ में लेके एंट्री करेंगे हम। फिर तरह तरह की परेशानियां भुगतो, बीवी शौहर में झगड़े, इसके झगड़े, आज सर दर्द, आज ये, आज वो, तरह तरह के शिकायतें मिलती हैं। तो हम जो है एंट्री करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि वलजना। यानी पहले हदीस में क्या है, यानी अल्लाह, बंदा जब दाखिल हो तो अल्लाह का जिक्र करे, अज़्ज़ा व जल्ला इंदा दुखूली इंदा तामही, यानी एंट्री करने के टाइम और खाने के टाइम। तो दुआ है बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ये दुआ पढ़ के हमें दाखिल होना है, अल्लाह के नाम से दाखिल होना है, और मतलब अल्लाह का जिक्र के साथ ही ये दुआ पढ़ के हमें दाखिल होना है। ठीक है, तो ये दुआ जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए पूरा का पूरा सेफ्टी है घर के अंदर। कोई चीज़ अगर हम लापरवाही कर जाते हैं, बाय देवी कोई चीज़ भूल गए, तो भी वो चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी। कि रूम में अब शैतान नहीं आया, और अगर हम बगैर अल्लाह का को याद किए, यानी बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुआ पढ़े एंट्री कर जाएंगे, तो शैतान हमारे साथ एंट्री करता है। तो आइए दूसरी हदीस की तरफ हम चलते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का अंधेरा शुरू होने पर या रात शुरू होने पर, रात का अंधेरा शुरू होने पर या रात शुरू होने पर अपने बच्चों को अपने पास, यानी शाम, अपने पास घर में रोक लो, क्योंकि शयातीन उसी वक्त फैलना शुरू होते हैं। शाम के टाइम पे, जब यानी रात का कुछ हिस्सा, यानी मगरिब से लेके इस टाइम पे शैतान जो है फैलना शुरू होते हैं, तो अपने बच्चों को हम रोक लें। शयातीन उसी वक्त फैलना शुरू करते हैं, फिर जब इशा के वक्त में से एक घड़ी गुजर जाए, यानी कुछ रात और चली जाए, इशा के घड़ी गुजर जाए, तो उन्हें छोड़ दो, चले फिरें, फिर अल्लाह का नाम लेकर अपना चिराग बुझा दो, यानी चिराग बुझा दो। पानी के बर्तन अल्लाह का नाम लेकर, यानी बिस्मिल्लाह करके बुझा दो चिराग, बिस्मिल्लाह करके, यानी जो खाने पीने की चीज़ है उसको ढांक दो, और बिस्मिल्लाह करके ही यानी सारे जितने काम हैं, यानी अल्लाह का नाम लेकर अपना चिराग बुझा दो। पानी के बर्तन अल्लाह का नाम लेकर ढक दो, और दूसरे बर्तन भी अल्लाह का नाम लेकर ढक दो। अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह कर लेकर ढक दो, और अगर ढकना ना मिले तो कोई चीज़ के ऊपर रख दो, आड़ी, ताकि मतलब वो ढकने के मुकाम हो जाए। पूरा ना ढक सके तो कुछ रख दो। तो ये बर्तन ढकने के बहुत सारे फायदे हैं भाइयों। एक तो कोई चीज़ गिरती नहीं है, और बहुत तरह का इसमें फ़ायदा है बर्तन ढकने में। ये बुखारी की हदीस है 3280। तो हम ये सब रूम में अपने इहतमाम किया करें। और सवाल ये है कि चोर जो होता है, मतलब जिस घर में माल ना हो, भिखारी के यहाँ चोरी करता है कि मालदार के यहाँ? मालदार के यहाँ चोरी करता है ना। तो शैतान कहाँ आता है, किसके पास? इस सवाल है कि शैतान किसके पास आता है? शैतान उसके पास आता है जिसके पास ईमान हो। जिसके पास ईमान नहीं हो उसके पास जाके क्या फायदा, वो तो फ्री हो गया। जिसके सामने कुफ्र की दीवार आ गई तो शैतान फारिग हो गया, उसके पीछे क्या जाएगा? वो तो खुद बहक गया, जहन्नम में जाने वाला हो गया। शैतान ने क्या कहा, मैं तो सीधे रास्ते पे बैठूंगा। ये सीधे रास्ते पे बैठता है, तो माल जहां होता वहीं चोरी होती है। तो जिसके पास ईमान का माल होगा, शैतान तो उसी के पास आएगा ना। तो हमारे पास अगर माल है तो आ रहा है, हमें अगर वसवसे आ रहे हैं तो समझ लो हम हक पर चल रहे हैं और शैतानी वसवसे का गलबा। और हमारे दिमाग में अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो समझ लो हम खारिज हैं। शैतान आलतू फालतू आदमी के पास नहीं आता है। तो हमें परहेजगार रहना चाहिए और शैतानी वसवसे से डरना नहीं चाहिए। और भाई
वसवसे आएंगे तो क्या काम छोड़ दोगे, यानी वो अमल छोड़ दोगे? मतलब आपके घर में चोरी हो रही है तो आप बड़ा लॉकर यानी बड़ा ताला लगाते हो कि नहीं? देखा हूं कि जहां जहां रूम टूट गए हैं डबल डबल गेट लगाए हैं, डबल डबल ताला लगाए हैं। क्यों? लकड़ी का अलग, हदीद का अलग। तो आपके पास जब वसवसे आए, आपके पास जब शैतानी वसवसे आए तो आप और अलर्ट होइए। इंशाअल्लाह। क्यों? अपने दुनिया के मामले में तो हम बहुत चालाक हैं कि देखते हैं कि भाई कितना ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी की जाए ताकि हमारा माल चोरी ना हो। तो जब भी तुम देखो कि हमारे पास शैतान का गलबा है, वसवसे का, इसका उसका बहकाता है, तो हम उतने ही ज्यादा उसकी यानी अल्लाह के जिक्र से उतनी ज्यादा उसकी हिफाजत करें। और ये हिफाजत करते, अल्लाह की इबादत करते मर जाएं। क्यों? सूरह हिज्र की आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यानी अल्लाह की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। भाई मौत तो आनी है, लेकिन जिस हाल में भी रहो, जब तक कि अक्ल बरकरार है तब तक अल्लाह की इबादत करो। जब अक्ल खो गई तो आपसे हिसाब नहीं होने वाला है, फिर आपसे हिसाब नहीं होने वाला है, अल्लाह ताला कलम को बंद कर देता है। तो हम इबादत करते रहें यहां तक कि मौत आ जाए। लेकिन हम इबादत तो करते रहते हैं, लेकिन आखिर वक्त में बर्रे सगीर वाले क्या करते हैं? नमाज भी छोड़ देते हैं, रोजा भी छोड़ देते हैं, और कहते हैं पाक साफ नहीं हो पाते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो जब दीनी इल्म नहीं होगा तो इसका शिकार होगे, बेनमाजी होके, बेइबादत यानी खाली मरोगे, मोमिन होके नहीं मरोगे। क्यों? हर हाल में अल्लाह को याद करना है, यानी इबादत करते रहो यहां कि तुम्हें मौत आ जाए। तो अब भाई पैखाना पेशाब लगा है तो क्या इबादत छोड़ दोगे? क्योंकि कुरान की आयत सामने रखा करो हमेशा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी पे उसके ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। हम खुद अपने ऊपर बोझ डालने वो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह ताला, भाई एक आदमी उठ नहीं सकता है, और कोई उठाने वाला नहीं है, पेशाब पैखाना लगा हुआ है, तो क्या नमाज छोड़ देगा? कहां है दलील नमाज छोड़ने की? आपको उसी हाल में पढ़ना है, सिर्फ इरादा करना है कि मैं पाक हूं और मैं वजू से हूं। अब सिर्फ आंख के इशारे चल रहे हैं, इसी इशारे से पढ़िए आप नमाज, क्योंकि आप जिस लायक हैं वो काम करिए। भाई 40 किलो उठा सकते हो तो 2 कुंटल तो अल्लाह ताला नहीं डालेगा कुछ। अगर डालेगा तो ये तो जुल्म है ना, तो अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता है। तो हमें हर तरह की परेशानियां आएंगी और इबादत करते हुए मरना है, कुछ भी हो जाए। दुनिया एक दिन तो सबको जाना है, तो फिर टेंशन किस चीज का? कोई आज गया तो कोई कल। भाई एक भाई आज चले गया तो दूसरा भाई बहुत करेगा, 20 साल रहेगा, एक गांव खरीद लेगा, फिर भी वो छोड़ के आएगा ना। बहुत कमाएगा तो एक गांव खरीद लेगा ना, फिर भी दिल की पॉइंट रखी तो छोड़ के आएगा, दुनिया में छोड़ देगा। सही है? तो फिर किस बात की टेंशन कि मैं बीमार हो गया, सामने वाला बहुत कमा रहा है? कोई से वो नहीं होता। तो मेरा पॉइंट क्या था? शैतान वहीं आता है जहां ईमान की दौलत होती है। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, और जब भी जितनी आए और अच्छे से अच्छा उस पर लॉकर लगाना, अच्छे से अच्छा अذकार करके और अपनी सेफ्टी करना। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर अपने दरवाजे बंद करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता। शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता, बशर्ते कि बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद किया जाए। यह अबू दाऊद की हदीस है 3731, बिल्कुल सही हदीस है। शैतान बंद दरवाजा नहीं खोलता। उसके लिए आने के तो बहुत जगह हैं, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह किया, अल्लाह का वो हुक्म आ गया ना उसके पास, अब वो नहीं खोल सकता है। तो ये हदीस बड़ी प्यारी थी। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अब हम रूम में अंदर ही हैं, तो अब भाई हम्माम में जाने की जरूरत पड़ती है अक्सर,
रूम में ही, घर में ही हमाम होता है। तो अगर दुआ पढ़ के नहीं जाएंगे, भाई मुसलमानों में तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 60% लोग दुआ पढ़ के नहीं एंट्री करते हैं घर में और हमाम में, और ना निकलते हैं। तो अब जो ईमान के रास्ते पे, इबादत के रास्ते पे चल पड़ा है, तो शैतान तो उसको पकड़ने वाला है, उसी को परेशान करने वाला है। भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आप दुआ में, घर में एंट्री करने का तरीका नहीं मालूम है और हमाम में घुसने का तरीका नहीं मालूम, तो शैतान तो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि हदीस है। क्यों? हमाम में घुसने के टाइम जो तरीका उसका, बायां पैर अंदर डाल के घुसना और दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जिन और जिन्निया से, यानी शैतान और यानी मेल फीमेल दोनों अंदर रहते हैं, उनका वहीं बसेरा होता है। तो जो दुआ पढ़ के नहीं जाता उस पर अटैक करते हैं और फिर उसको तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह का परेशानी शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब हमाम से निकलें तो दाहिना पैर बाहर निकालें और पढ़ें गुफरानक, यानी ये दुआ है। तो ये जब पूरे इस तरह का हम अमल करेंगे, सुन्नत तरीका पूरा, तो सेफ रहेंगे, वरना कहीं किए कहीं नहीं किए तो फंस जाएंगे फिर। क्यों? अब आप एंट्री कर चुके हो तौहीद के अंदर, तो अब आपको शैतान बहकाएगा, खौफ के जरिए, इसके जरिए, फकीर होने के जरिए, हर तरह से वो आपके, तुम्हारी तहारत कंप्लीट नहीं है, अभी पेशाब चू रहा है, अभी ये है, तो यानी हर तरह का वो आपको बहकाएगा। लेकिन जब आप दुआ पढ़ के यानी अल्लाह का अधिकार करते हुए सुबह और शाम गुजारोगे तो आपके करीब नहीं आएगा, वो आएगा, बस आप उतनी ज़्यादा सेफ्टी करोगे तो फिर भाग जाएगा। तो दुआ हम लोग जो सुने हैं ये, यानी एक तो दुआ ये है, रूम से निकलने के लिए, रूम से जब निकलो तो दुआ अगर पढ़ लोगे तो सेफ रहोगे। इसका दुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये रूम से निकलने की दुआ है, घर के से बाहर निकलने की दुआ है। ये तिरमिज़ी 3426 में मिलेगी ये हदीस आपको। इसका तर्जुमा यह है कि मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और गुनाहों से बचने और किसी नेकी के बजा लाने की कुदरत और कुव्वत नहीं है हमें। गुनाहों से बचने और किसी नेकी को बजा लाने की हमारे अंदर कुव्वत नहीं है सिवाय सहारे अल्लाह के। ठीक है, उससे कहा जाएगा तुम्हारी किफ़ायत कर दी गई और तुमसे दुश्मन के शर से बचा लिए गए और शैतान तुमसे दूर हो गया। जब हम कहेंगे कि अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं, तो अल्लाह फिर जवाब देता है कि तुम्हारी किफ़ायत कर दी गई दुश्मन से और हर तरह के शर से, और शैतान तुमसे दूर हो गया। हमारे साथ एक शैतान होता है, तो जब हम ये दुआ पढ़ के निकलते हैं, बाकी और किताबों में है, तो बाहर वो एक इंतजार करता है, घर के बाहर एक इंतजार करता है, हाँ इंतजार करता है। तो बाहर वाला कहता है कि तुम इसको छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो ये हमारे साथ वाला कहता है कि इसने ऐसे कलमात कहे हैं कि अब इसकी सेफ्टी हो गई, तो मैं क्या, तू भी नहीं टिक सकता इस, मतलब बाहर एक इंतजार करता है। अगर हम अल्लाह के जिक्र करके नहीं निकले तो हमारे साथ हो, और जो हमारे साथ होता है वो भाग जाता है फिर। और बाहर वाला पूछता है कि तुम क्यों जा रहे हो, तो कहता है कि इसने ऐसे कलमात कहे हैं, ये दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हदीस तिरमिज़ी 3426 में है। तो हम इस चीज़ का एहतमाम करें भाइयों, एहतमाम नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आता कि हमें शैतानी परेशानी है, कि रियल में बीमारी है, कि नज़र लग गई है, यानी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दवाई भी, कुछ दुआ भी इस तरह के चलते रहते हैं, किसी से ठीक हो जाता है। तो जब दिक्कत बढ़ जाती है तो क्या है कि यानी दरगाह और मजार और बाबा के पास मुर्गा चढ़ाने से परेशानी दूर होती है,
दूर होती है। अब कोई पूछे कैसे दूर होती है, भाई चौंकने वाली बात है। दरगाह पे मुर्गा चढ़ाने से, बकरा चढ़ाने से और हार चढ़ाने से, सजदा करने से तुम्हारी परेशानियां दूर होती हैं, हकीकत में दूर होती है। अब जो कोई पूछे कि कैसे दूर होती है, तो जवाब ये है कि ऐसा है कि 95% प्रॉब्लम दुनिया में नजर, हसद और शैतानी वसवसे और शैतानियों का हमला और जादू। क्या प्रॉब्लम है? 95% प्रॉब्लम, उसमें हर चीज है। झगड़ा, बीमारी, शुगर, कैंसर, जितने भी तरह का, बीवी शौहर में झगड़ा, इससे उससे, तो क्या है? नजर, हसद, शैतान, जादू और जो एक दूसरे में लगाते बजाते हैं। तो जब आपको दीनी मामलात का इल्म नहीं है तो आप चाहोगे कि बाबा के नाम पे कुछ चढ़ा दें ताकि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। औलाद का होना रुक जाता है, रहम बांध दिया जाता है। खैर, अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया वो तो होगा, लेकिन मौक़तन ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप जाओगे बाबा के दरगाह पे और कुछ मन्नत मांगोगे, कुछ मुर्गा चढ़ाओगे, कुछ शिरकिया काम करोगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि शैतान के जादू की तरफ से था, शैतान की तरफ से था। अब बोलता है कि अब ये धंधे पे लग गया है, ये सही सेट हो गया है, अब मैं भाग जाता हूं। तो जब निकलता है तो आपकी बीमारी, आपका सर दर्द, आपका ये सब ठीक हो जाता है। हाँ, तो अब जो बीमार है उसका अकीदा किस पे गया? भाई शैतान देखा कि जो दिक्कत डाल के मैंने रखा था हसद नजर की वजह से या जादू की वजह से, तो अब ये तो शिरकिया काम करने लगा, मेरा काम तो हो गया। फिर अगर कहीं रास्ते पे वापस घूम आया तो फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो छोड़ के चले जाता है। तो ये समझना हमें जरूरी है। अगर इनकी मुरादें ना पूरी हो तो कोई जाएगा दरगाह पर? और इसके बहुत लंबी कहानी है भाइयों, इसकी बहुत लंबी कहानी है। मैंने बताया था कि 5 लोग को बुखार है और 5 लोग ने बाबा के पास नहीं गए और 5 लोग घर पे रहे और 5 लोग गए। तो किसी का बुखार जाके वहां ठीक हुआ और किसी का बेघर जाए ठीक हुआ, ये गारंटी है। वो 5 जो गए हैं उनके ठीक हो जाएंगे, इनके नहीं ठीक होंगे, कोई कहेगा? तो ऐसे ही है, अगर हसद नजर जादू ना रहे तो भी ऐसे ही होता है। तो जो ठीक हो गए हैं उनका अकीदा भाई अल्लाह से खत्म हो गया ना, बाबा के ऊपर चले गया ना। तो इसीलिए 95% प्रॉब्लम दुनिया के यही है जो मैं गिनाया हूं अभी। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। आइए एक हदीस और हम सुनेंगे। बाहर निकलने के बाद हम तो दुआ पढ़ लिए, उसके बाद में जब बाजार में एंट्री करने लगे तो दुआ पढ़ के अगर एंट्री करेंगे तो 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख बुराइयां मिटाई जाती हैं, 10 लाख दर्जे बुलंद होते हैं। और दुआ अक्सर मुसलमान को मालूम रहता है लेकिन थोड़ा सा तरतीब देना पड़ता है। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ पढ़कर बाजार में एंट्री करना है। अगर ये दुआ पढ़ के नहीं घुसे तो मामला फंस सकता है। तो ये सही मुस्लिम में 2674 में मिलेगा, 6804, यानी 2 नंबर है, 6804 में डाल दूंगा इंशाल्लाह तकरीर में। तो ये दुआ हम पढ़ के जब जाएंगे, देखिए एक तर्जुमा डायरेक्ट सुन लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हिदायत की दावत दी उसे, अच्छा ये दुआ वो है। तो ये दुआ मैंने जो अभी बताया है उसकी जो यह है कि 10 लाख बुराइयां मिटाई जाएंगी और 10 लाख नेकियां मिलेंगी और 10 लाख दर्जे बुलंद होंगे। ठीक है, बाजार में ये घुसने की दुआ है। आइए भाइयों, एक ये जो बाजार की दुआ थी तिरमिज़ी 3428 में है। और एक हम लोग आखिरी हदीस जो सुन लेंगे
کہ آپ لوگ جو مجھ سے سنتے ہیں وہ دوسروں تک پھیلانے کا کیا ثواب ہے، جی اور جو لوگ میری تقریر سنیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، اس متعلق ایک حدیث لے کے آیا ہوں، تو آپ لوگ سنیں اور دوسروں کے پاس تقریر بھیجا کریں، اور بھی کسی کی بھی تقریر جیسی ہو، اچھی والی تقریر یا اچھی بات یا جو بھی فائدے والی چیز۔ تو یہ حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری بھائیو، 6804، اور بھی شاید انٹرنیشنل کے مطابق 2674 میں ہے۔ تو یہ حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہدایت کی طرف، نیک کام کی طرف بلاتا ہے، اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، اچھی مجالس کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے، یا سکھاتا ہے، تو جب تک سننے والا اس پر چلتا رہے گا اور اس سے جتنے لوگوں میں پھیلے گا ان سب کو ثواب ملے گا، لیکن سکھانے والے کو یہ تقریر بھیجنے والے کو بھی اتنے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور ان سب کے برابر پھیلانے والے کو ملے گا۔ صدقہ جاریہ ہو گیا، صدقہ جاریہ ہو گیا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ عجاب جاریہ۔ اور دوسرا پوائنٹ جو تھا وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ دَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے یا برائی پھیلاتا ہے تو جتنے لوگ اس برائی پہ چل پڑیں گے ان سب کو گناہ تو ملنا ہے، جس نے پھیلایا ہے اس کو بھی ان سب کے برابر ملتا رہے گا، ان کو ان سب کے برابر ملتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ جب کوئی اچھی تقریر سنیں تو دوسروں تک پہنچائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو سکتا ہے کسی کے کچھ ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ جو میں تقریر کرتا ہوں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں تقریباً الحمدللہ، جتنا کوشش ہوتا ہے مجھ سے، تو آپ لوگ اس کو واٹس ایپ کے ذریعے جس ذریعے پھیلائیں اور دوسروں کو وہ چیز بتائیں اپنے دوستوں میں کہ اس طرح ہمیں رہنا چاہیے، اس طرح کی یہ، اور اگر حدیث نمبر نہ یاد ہو تو وہ تقریر سن کے نکال لیں کہ ہر واقعہ کا میں دلیل دیتا ہوں۔ تو اس لیے نیکی پھیلانے کا فائدہ سن لیے اور برائی پھیلانے کا بھی نقصان سن لیا آپ لوگ۔ تو اللہ جزائے خیر دے بھائی آپ لوگوں کو جو اتنا ٹائم دیے ہیں، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ اور اس بیان میں اگر کوئی بات اونچ نیچ اگر ہے یا کوئی دلیل کمزور ہے تو جس کو اس سے اچھا حدیث ملے، قرآن کی دلیل ملے، وہ اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے، کیونکہ بہت سارے ائمہ ایسے گزرے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں بعد میں رجوع کر لی ہیں۔ تو اگر کوئی حدیث میں ضعیف پیش کرتا ہوں لا علمی میں اور بعد میں مجھے اس کے حقیقت کا علم ہو جاتا ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ تو اس لیے بھائیو جس کو اس سے اونچی دلیل ملے وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔